Hello everyone. Today we will discuss some other theorems related to circle. First one, there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. Collinear points means having a straight line. Non-collinear, these are three non-collinear points. Yeah. So आपकी थ्योरम नंबर 10.5 there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. Three given non-collinear points means suppose 3 points A, B and C given, join A to B and B to C. Okay. 2 points join किया तो given क्या हो गया आपका A, B, C are three non-collinear points. A, B and C are three non-collinear points. Collinear points. Yeah. नेक्स्ट है इसमें प्रूफ क्या करना है प्रूव there is one and only one circle passing through A, B and C. कंस्ट्रक्शन किया हमने कंस्ट्रक्शन में क्या है ज्वाइन A to B and B to C. Join A to B and B to C. Yeah. After इसमें पूरे this theorem is based on only construction. So पहले हम इसमें पूरे में construction करते हैं. तो suppose 3 points A, B and C. Even join A to B and B to C. Okay. Then construct a perpendicular bisector of AB and BC. इसके perpendicular bisector आपको draw करना है. How can draw perpendicular bisector? A line segment, suppose AB is given. More than half of a radius of AB, cut arc of both sides from point A and B. Join this point. This is a perpendicular bisector of given line segment. Same procedure apply to point A to B. अब इसमें हम perpendicular bisector draw किया. So more than half of a radius of AB. Stress your compass. More than half. Suppose 5 है तो more than half 2.5 से greater लेना है. From point A से arc cut किया both side and from point B से arc cut किया both side. Join this arc. This is a perpendicular bisector. Suppose AQ. Same procedure apply in point side BC. B as a center and more than half of a radius of arc cut arc from point C also. दोनों point से आप arc cut करना है और इसको join कर देना है. This is a again perpendicular bisector of BC. This one is suppose XY. तो draw construction में first क्या लिखना है A to B join किया and B to C. Then draw construct a perpendicular bisector. Construct a perpendicular bisector PQ on किस पे ड्रॉ किया AB and XY on BC. Yeah. So both perpendicular bisector A, PQ and XY intersect at a point. Suppose XY and PQ intersect at a point O. O is a अब ये O जो point आया है O is a center of a circle. So O as a center and any
रेडियस O2A ले सकते हैं, O2B ले सकते हैं, O2C ले सकते हैं. So O as a center and any radius O2A or O2B or O2C. Take radius, draw a circle. सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ऑल 3 पॉइंट्स से होके आपका मूव करेगा, इन 3 पॉइंट्स से होकर जाएगा, जो आपको प्रूफ करना है. ठीक है. सो आपने इसमें क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ क्या किया, आपने जो कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे उनको आपने क्या किया, ज्वाइन किया. देन क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट अ पॉइंट O एज अ सेंटर एंड एनी रेडियस O2A, O2B और O2C. क्या करना है इसको, ड्रॉ अ सर्कल. So these A, B, C all circle passing through point A, B and C से पास होके जाएगा. तो ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्शन. अब इसमें प्रूफ क्या लिखना है, सिर्फ प्रूफ इज देयर सिंस O lies on a perpendicular bisector of PQ. अगर O क्या है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो O से A और O से B की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. उसी सिमिलरली O से B और O से C की डिस्टेंस इक्वल होगी. सो OA is equal to OB and OB is equal to OC. So from first second OA is equal to क्या हो गया, OC. means all 3 points are क्या हो गए आपके, these are represent O as a center and R यानी ये OA, OB and OC are a radius of a circle. So ये आपको बस इसमें इतना लिखना है. एक बार और इसको देख लें. इसमें क्या था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन थे, A, B and C. In 3 non collinear points passing through one and only one circle passing through all 3 non collinear points, ये आपको प्रूव करना था. इसमें कंस्ट्रक्शन मेन है. तो AB as a line segment, draw a perpendicular bisector more than half of a radius, draw a perpendicular bisector. Similarly BC पे भी आपने perpendicular bisector draw किया more than half radius लेके, और both perpendicular suppose PQ and XY meet a point O as a center and any radius from point A से ले लीजिए या फिर B से ले लीजिए या फिर C से ले लीजिए. इससे आपको रेडियस वो लेनी है, OA लेनी है, OB लेनी है, OC, और एक सर्कल O as a center और रेडियस, गिवन रेडियस, ड्रॉ सर्कल जो पासिंग थ्रू पॉइंट A, B एंड C. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सपोज 2 सर्कल्स आर गिवन. तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने भी हैं वो कितने पॉइंट्स पे कट होते हैं. सपोज ये 2 सर्कल ड्रॉ किए, इस कितने पॉइंट पे कट हो रहे हैं, नो पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट. अगर हमने इस तरह से ड्रॉ किया, सॉरी, only having a one common point, intersect only one point. ठीक है. और अगर हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स. सो एनी 2 सर्कल्स. क्वेश्चन है आपका ये 10.3 का फर्स्ट, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल. पेयर में ही आपको बनानी है. हाउ मेनी पॉइंट्स टच ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. 2 सर्कल्स लेने हैं आपको और 2 सर्कल्स के कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो नो कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट एंड 2 कॉमन. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इन पेयर ऑफ सर्कल कितने होंगे, 2.
2 आपको सर्कल्स लेने हैं उसमें। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कितने कॉमन पॉइंट हैं इसमें 2। फर्स्ट में क्या है, नो कॉमन पॉइंट। सेकेंड में ओनली इस तरह से कि सिंगल 1 कॉमन पॉइंट। एंड थर्ड में आपके कितने हो गए, 2 कॉमन पॉइंट्स। So maximum number of common points are 2 in pair of circle. अब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, आप किसी भी बेसिस पे इनको इंटरसेक्ट करिए, आपको कहीं भी 2 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स आपके 2 ही होंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 10.3 में, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड अ सेंटर। सेम जो अभी थ्योरम बताई है उसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया था, सेंटर। तो आपको एक सर्कल बेंगल के थ्रू, सपोज बेंगल, यूज ऑफ बेंगल, हेल्प ऑफ बेंगल, ड्रॉ अ सर्कल। तो जब हम हेल्प ऑफ बेंगल्स ड्रॉ सर्कल कर रहे हैं, ड्रॉ सर्कल कर रहे हैं, तो देयर इज नो सेंटर, वहाँ पे सेंटर नहीं पता। अब हमको इस सर्कल पे सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हम कहीं भी ऐसे अपने आप से नहीं रख देना सेंटर। इसके लिए सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ 2 chords, सपोज AB एंड CD। हमने 2 कोई भी कॉर्ड्स इसमें ड्रॉ कर ली, सपोज ये ड्रॉ कर ली CD। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड CD। दोनों में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ऑफ अ रेडियस ऑफ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसमें ये परपेंडिकुलर, दोनों जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसमें क्या है, ये आपका XY हो गया, ये हो गया PQ। बोथ आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट that is represent center of a circle. So ये क्वेश्चन से आपको क्या करना है, यूजिंग एंगल ड्रॉ अ सर्कल, देन ड्रॉ 2 chords 2 chords आपको ड्रॉ करनी है, और उन chords का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट अ पॉइंट, कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। yeah. Next question is given, if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lies on the perpendicular bisector of the common chord. आपको प्रूफ करना है इसमें कि 2 circles intersect at 2 points, then prove that their center lies on a perpendicular bisector of the common chord. उस पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट एक 2 हमको लेने हैं, क्या लेने हैं, सर्कल हैविंग अ 2 points। Suppose we take 2 circles with center O and O dash। इसका सेंटर क्या है, O, और इसका क्या है, O dash। intersect 2 points, suppose AB and AB, intersect 2 points A and B। आपको प्रूव करना है, join the prove that their centers lies on the perpendicular bisector of a common chord। ये common chord है, कॉमन कॉर्ड क्यों है, क्योंकि वो इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी। तो दिस इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्कल। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी ओ और डैश को अगर हम ज्वाइन किए तो क्या होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश पी, यानी ए पी इज इक्वल टू बी पी भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या हम फर्स्ट वी टेक 2
circles having a different radius and different common points. Suppose O and O dash, radius R and R dash. ठीक है, तो हमने इसमें क्या ले लिया, two different types of two circles having a different radius and different centers. चलिए अब इसको प्रूव करते हैं. So we take two circles with center O and O dash, intersect two common points A and B. Given में क्या लिखेंगे, given two circles with centers O and O dash, O and O dash intersect at point A and B. A and B. Okay. ये गिवन में है आपका. फिर नेक्स्ट इसी में लिखना है आपको, क्या करना है. सो कॉमन कॉर्ड ए बी को ज्वाइन कर दिया. कॉमन कॉर्ड ए बी ऑफ टू सर्कल्स एंड ओ डैश इज लाइन सेगमेंट आपकी है ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल. तो ज्वाइन ए टू बी and O to O dash. So both are intersect point. Suppose किस point पे intersect कर रहे हैं, M point पे suppose मान लिया, intersect at a point M. ये आपका given है. प्रूफ क्या करना है, to prove O dash is perpendicular bisector of AB. में प्रूफ करना है O dash is perpendicular bisector of AB. इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमें एंगल M90 प्रूफ करना है, चाहे वो OMA हो, O डैश MA हो, कुछ भी हो, वो क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है. यानी BMO AMO O डैश MO OM O डैश MB सब क्या होना चाहिए, 90 प्रूफ करना चाहिए. और दूसरा क्या प्रूफ करना है, AM इज इक्वल टू BM. तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, AM is equal to BM and angle M is equal to 90 degree. Yeah. So इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया. पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन O to A and O dash to A, O to B and O dash to B ज्वाइन किया. O to A and B and O dash to A and B ना हमने ज्वाइन कर दिया. क्या, अब हमें प्रूफ करना है. इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम कौन सा ट्रायंगल लें, फर्स्ट हम ले रहे हैं O डैश प्रूफ पार्ट बस लिखना है यहाँ पे, बाकी हम रब कर दे रहे हैं. सो प्रूफ
in triangle OAO dash and OBO dash। ऊपर वाला पूरा लेना है, ये वाला पार्ट पूरा, और ये नीचे वाला पूरा ट्रायंगल। अब उसमें क्या है, OA इज इक्वल टू OB। ये क्या हुआ, रेडियाई आर सेम। क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। पहले वाले सर्कल की रेडियस, तो रेडियस क्या होती है, इक्वल होगी। दूसरा क्या लिख सकते हैं, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B। सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, किस सर्कल की है, सेकंड सर्कल की। क्लियर। थर्ड वन क्या लिख सकते हैं, O O डैश इज इक्वल टू O O डैश कॉमन। So which criteria use, S S S, both triangles are congruent। Triangle OA O dash is congruent to triangle OBO dash by S S S। वह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। और रेस्ट ऑफ पार्ट में क्या होंगे, ऑल थ्री साइड्स हैं तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। सो हमने ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिसको यूज करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। क्लियर। अब इसके बाद हमें लेकिन प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था AM इज इक्वल टू BM, और क्या प्रूफ करना था, एंगल M इज इक्वल टू 90। तो इससे हमारा अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब हमने ट्रायंगल लिया है, सपोज ये वाला AOM इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। क्या, कौन सा, सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है, ये ऊपर वाला इतना पार्ट और नीचे वाला ये पार्ट, ये दिख रहा है आपको। डन। सो AOM एंड BOM, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। एंड अभी अभी हमने प्रूफ किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड above। So which criteria use, S A S, both triangles are congruent, and angle AOM is congruent to triangle BOM by SAS। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, बाई CPCT। अब सेकंड पार्ट क्या है, सपोज इस एंगल को हमने ले लिया 3 और इस एंगल को ले लिया 4, ये वाले एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो एंगल 3 इज इक्वल टू, प्रूफ कर सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4 ऑल्सो CPCT, क्योंकि इसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। एंगल 3 भी 90 है, सो एंगल 4 भी क्या होगा, 90। सो हमने प्रूव कर दिया AM इज इक्वल टू BM एंड एंगल M इज इक्वल टू 90। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो गया आपका, all two properties are proved। So OO dash is perpendicular bisector of AB।
तो हमने इसको प्रूव कर दिया। एक बार इस क्वेश्चन को सिर्फ फिगर के थ्रू देख लें। फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल with center O and radius R. Another draw a circle intersect previous circle at a 2 point. With तो 2 सर्कल से एक सर्कल क्या हो गया C with center O and radius R. Another circle suppose C1 with center O dash and radius R dash. Yeah. तो center O and O dash. Common point, intersecting point A and B. A and B. Join A to B and O to O dash. Join A to B and O to O dash. ये सब गिवन पार्ट में आपका है। प्रूफ क्या करना है? O O dash is perpendicular on AB. इसका मतलब क्या हुआ? प्रूफ करना इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट M. M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है AM इज इक्वल टू BM। यहाँ एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल आपको 90 प्रूफ करना है। कोई भी एंगल इसमें से ये आपको 90 प्रूफ करना है। ये आपका हो गया टू प्रूफ। ये आपका हो गया गिवन। कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया? ज्वाइन O टू A एंड B। O से A और B को ज्वाइन किया। सिमिलरली O डैश से भी A और B को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन O डैश टू A एंड B। आपका ये जो आ गया फिगर, इसके अकॉर्डिंग पहले ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल लेना है। तो कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? फर्स्ट ये वाला ट्रायंगल लिया। कौन सा है? ट्रायंगल AOO डैश एंड ट्रायंगल नीचे वाला क्या है? नीचे वाला ले लिया हमने ये वाला पूरा BOO डैश। अब AO ये OA is equal to OB and O dash A is equal to O dash B। क्या हुआ इसका रीजन? रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। अलग अलग दोनों को लिखना है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंड नेक्स्ट वन OO dash कॉमन। OO dash is equal to OO dash कॉमन। रीजन क्या आ गया? कॉमन। बाई SSS both triangles are congruent। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला पार्ट बस ले रहे हैं। ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, हाफ पार्ट। एक ही सर्कल की तरफ 2 पार्ट्स वाले ट्रायंगल ले रहे हैं। सो ट्रायंगल कौन सा लिया? AOM एंड ट्रायंगल BOM। अगेन क्या हुआ? OA is equal to OB, radii of a same circle। एंगल 1 is equal to एंगल 2। प्रूव्ड above। अभी अभी हमने प्रूव किया। प्रूव्ड above। एंड OM is equal to OM common। So triangle AOM is congruent to triangle BOM by SAS। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स इक्वल, यानी हम बोल दें AM इज इक्वल टू BM बाई CP/CT एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CP/CT।
एंगल 3 इज इक्वल टू 4। अब एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, linear pair. So in place of 4 we put 3. Angle 3 plus angle 3 is equal to 180. 2 times angle 3 is equal to 180. Angle 3 is equal to 180 upon 2 means हो गया 90 डिग्री। सो हमें यही प्रूव करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स 90 एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओ ओ डैश बाइसेक्ट ए बी एट अ 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट मीन्स क्या हो गया, ओ ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये थ्योरम आपको प्रूव भी करनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं हम इसको यूज भी कर सकते। सो क्लियर, ये आपकी थी एक्सरसाइज 10.3।